Good afternoon students, welcome back again in your new lecture. Okay, in my last lecture I had taught you about the concept of addition which we had revised in our book, that we had already completed in our notebook earlier, but that day we had revised that in our book. Today I am here with a new concept of ascending and descending order. Okay, it was there in your book on page number 44. Okay, and the concept is ascending first I will teach you about ascending order. Okay, what is the meaning of ascending order? What is the meaning of ascending order? Ascending order means from small to big. From small to big. In ascending order we will move from small number to big number. Okay, so ascending order means small to big. So we will move from small number to big number. Okay, so here see, here there is on page number 41 it was given there 4 aeroplanes were there, and on first number it has already done for you from 56 to 59. That means we went from small to big number. 56, 57, 58, 59. उसके बाद देखिए 79 to 82 लिखा हुआ है आपकी बुक में, और 4 आपको कॉलम्स दे रखे हैं. सो आपको क्या करना है, स्मॉल नंबर से बिग नंबर पे जाना है. आप काउंटिंग करते हैं. ओके, सो 82 इज बिगर देन 79. ओके, so that means we have to write 79 is the smallest number, so we will write here 79. What comes after 79? 80 is bigger than 79. Then 81 is bigger than 79, and 80 and 82 is the last number in this series. So 82 is the biggest number from 79 to 82 numbers. 82 is the biggest number, so we have written 82 at last. इसका मतलब है हम छोटे नंबर से लगा के बड़े नंबर पर गए. हमारी सीरीज क्या थी, 79 to 82. तो 79 82 से छोटा है और उसके बीच के सभी नंबर से भी 79 छोटा है. सो फर्स्ट वी हैड रिटन 79. आफ्टर 79 क्या आता है, 80 के बाद 81 के बाद 82. So like this way you have to write in your book. After that see 87 to 90. 87 to 90, 90. Okay. So 88, 89, 87 to 90 it was written here. So here 87. 87 is the smallest number in this series. After 87, 88. After 88, 89. And at last, biggest number is 90. 90. That means ascending order means from small to big. From small to big. First we will complete this series in our book. Then you have to do this concept in your notebook also. Okay. Then after that 97 to 100. 97 to 100. So 97 is the smallest number in this series. 97 will start from 97 because from 97 to 100 we have to write. That means 97. After 97, 98 is the biggest number after that. Then 99 is bigger from 98, and 100 is the biggest number in this series. So we are writing 100 at last. So ascending order means we go from small to big number. From small to big. आपके घर में स्टेयर्स होती हैं, जब आप स्टेयर्स चढ़ते हैं, है ना, जब हम स्टेयर्स चढ़ते हैं तो हम लास्ट से 1 से लगा के अगर हम चढ़ते हैं, मान लीजिए 10 सीढ़ियां हैं आपके घर में, तो आप क्या कर रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में आप चढ़ रहे हैं ना. तो नीचे 1 से आपने शुरुआत करी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, बिग टू स्मॉल. जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं मतलब आप उल्टा आ रहे हैं, तो 10 9
मच ओनली इट वाज देयर इन योर बुक। पहले हम सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर करेंगे, उसके नीचे डिसेंडिंग ऑर्डर अभी हम बाद में करेंगे। तो मैं पहले आपको क्लियर कर देती हूँ असेंडिंग ऑर्डर, दैट मीन्स स्मॉल टू बिग। देखिए आप अपनी टेक आउट योर नोटबुक फर्स्ट, ऑल ऑफ यू। Okay, so in that notebook you have to write proper CW, date, heading. This heading you have to write and you have to write this also small to big. Okay, तो हम जैसे for example मैं आपको बता रही हूँ, आपके घर में stairs होती हैं, सीढ़ियाँ होती है ना, जैसे आप क्या करते हैं, आपको ग्राउंड फ्लोर है, ये ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है। आपको ग्राउंड फ्लोर मतलब नीचे से आपको ऊपर जाना है। मान लीजिए आपको ग्राउंड फ्लोर से ऊपर जाना है फर्स्ट फ्लोर पे। कहाँ जाना है? ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे, मतलब नीचे से आपको ऊपर जाना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, है ना। आप भी सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना ऊपर जाने के लिए, आप डायरेक्ट जंप लगा के जाते हैं, हमको सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ती है। तो हम क्या करते हैं, पहले नंबर की सीढ़ी से स्टार्ट करते हैं और जितनी भी सीढ़ियाँ होती हैं हम वहां जाते हैं, तब हम फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके घर में 10 सीढ़ियाँ हैं, तो आप क्या सबसे पहले 10वीं सीढ़ी पे चढ़ जाएंगे, 10th वाली पे स्टेयर पे? नहीं ना, पहले हम 1 से शुरू करते हैं। तो दैट मीन्स आप छोटे नंबर से बड़े नंबर पर जा रहे हो। जैसे मैं पहले गई 1, then 2, then 3, then 4, then 5, then 6, 7, 8, 9, 10। अब मैं पहुंच गई फर्स्ट फ्लोर पे। इसका मतलब क्या है कि मैं ग्राउंड फ्लोर छोटे नंबर से मैंने शुरू करा और मैं चढ़ते 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 ऊपर बड़े नंबर तक पहुंच गई। तो मैं ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच गई। दैट मीन्स आई मूव फ्रॉम स्मॉल नंबर टू बिग नंबर। आई मूव फ्रॉम स्मॉल नंबर टू बिग नंबर। दैट मीन्स 1 इज द स्मॉलेस्ट नंबर इन दिस सीरीज। 1 से थोड़ा सा बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 6, 6 से बड़ा 7, 7 से बड़ा 8, 8 से बड़ा 9, 9 से बड़ा 10। दैट मीन्स हम छोटे नंबर से बड़े नंबर में गए, स्मॉल टू बिग। दिस इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। दिस इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर दैट वी मूव्स फ्रॉम स्मॉल टू बिग, है ना। जब आप अपनी सीढ़ियां चढ़ेंगे ना, आप अपने घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असेंडिंग ऑर्डर। दैट मीन्स वी आर मूविंग फ्रॉम स्मॉल टू बिग। आप स्टेप्स चढ़ते जाइए और नंबर्स बोलते जाइए, तब आप बोलेंगे यस दिस इज असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब क्या होता है, एक ही असेंडिंग ऑर्डर होता है। अब हम पहले असेंडिंग ऑर्डर्स की कुछ एक्सरसाइज करेंगे, देन आई विल टीच यू अबाउट डिसेंडिंग ऑर्डर, सो दैट यू हैव टू डू इन योर, इफ यू वांट टू मेक these stairs in your notebook also, you can take help of your parents and you can make these stairs, and by yourself you can write the numbers in that stairs. Okay, so now we will do the exercise number 1. So number 1 में आपको क्या लिखना है, मैं यहाँ पे कुछ हैफजल नंबर, मतलब आगे पीछे कुछ नंबर लिख रही हूँ, उनको आपको प्रॉपर सीरीज में जमाना है। ओके, 9, 5, 10, 3 ये नंबर्स हैं। अब इन नंबर्स को आपको असेंडिंग ऑर्डर में इनको आपको रखना है। आप कैसे रखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में? देखिए ये 4 हमारे बॉक्स है, क्योंकि आई हैड रिटन 4 नंबर हियर, तो इसके हिसाब से आपको इनको अरेंज करना है, रीअरेंज करना है इनको असेंडिंग ऑर्डर। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असेंडिंग ऑर्डर? दैट वी आर मूविंग फ्रॉम स्मॉल टू बिग। सो हमें देखना है इसमें सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है इस सीरीज में। आप मुझे बताओ, 9 सबसे स्मॉल है? नो, व्हेन वी आर राइटिंग काउंटिंग, अगर आप काउंटिंग लिखते हैं तो इनमें से पहले नंबर कौन सा आता है? सो वी आर राइटिंग हियर 3 सबसे पहले आता है। 3 के बाद में क्या आता है? 4 तो है ही नहीं इस सीरीज में। 4 के बाद 5, वी आर रिटन हियर 5, 3 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, 5 उससे थोड़ा सा बड़ा हो गया। उसके बाद में 9 और 10 बचा है, तो पहले हम 9 लिखते हैं या पहले 10 लिखते हैं? वी आर राइटिंग 9, देन एट लास्ट बिगेस्ट नंबर इन दिस सीरीज इज
6. This you have to arrange these numbers in ascending order. Okay. In ascending order, you have to arrange these numbers. That means from small to big. That means from small to big you have to arrange these numbers. अब आप देखिए इसमें सबसे स्मॉल नंबर कौन सा लग रहा है आपको? आपको सबको काउंटिंग आती है 1 से 100 तक की. आपको स्मॉल नंबर कौन सा लग रहा है? 7 है, 4 है, 11 है या 6 है? तो सबसे स्मॉल नंबर है 4. ओके. 4 के बाद में उससे थोड़ा सा बड़ा है 6. 6 से बड़ा है 7 क्योंकि 6 के बाद 7 लिखते हैं. और 7 के बाद 8, 9, 10 उसके बाद 11 आता है. दैट मीन्स 11 इज द बिगेस्ट नंबर. सो लाइक दिस यू हैव टू कंप्लीट. Okay, so number 3 I am going to write here this side. Number 3 I am going to write some numbers here. 13, 16, 20 and 25. These numbers you have to arrange in ascending order. Okay. Okay. So here we have to see which is the smallest number in this series. सबसे छोटा नंबर. अरे अभी तो अब आप मुझे बताओ, हमने सेम सीरीज जैसी थी हमने वैसी की वैसी वी कैन राइट दिस आल्सो कि 13 स्मॉलेस्ट है. दैट मींस है. 16 उससे बड़ा है. देन 20 है. देन 25. तो सेम आंसर हमारा असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा क्योंकि जो हमने ऊपर सीरीज लिखी है वो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में मैंने लिखी है. Okay, after that number 4. On number 4 I am going to write here 17, 9, 15 and 8. So now in this series we have to see which is the smallest number in this series. तो इस सीरीज में सबसे छोटा नंबर देखो 17, नो. 9, no. 15, no. 8. 8 is the smallest number because सबसे पहले हम इन सीरीज में 8 लिखते हैं. 8 के बाद में 9 आता है, फिर 10 आता है, उसके बाद में 11, 12, 13, 14 है ही नहीं, 15, 16 भी नहीं इस सीरीज में, then 1, 7, 17. So we move from smallest number to biggest number. Okay. Here, if you are not able to see it properly, I am going to erase this from here and मैं एक बार फिर से इस तरफ लिख देती हूँ अगर आपको इधर से दिखाई नहीं दे रहा है. ठीक है, ये वाली सीरीज. Number 3 again I am writing here because I think that you are not able to see it properly from that side. 13, 16, 20, 25. Okay, so this is the series. आपको सेम वे में इसको जैसे एज इट इज आ जाएगी बिकॉज 13 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, देन 16, देन 20, देन 25. And I had written on number 4, 17, 9, 15 and 8.
So here I have written 8, 9, 15 and 17. Okay, now complete. Okay, now number 5. I am going to erase this number from the board and I am going to write here number 5. Number 5, you have to write here 26, comma, 29, comma, 14, comma, 2. So, which is the smallest number in this series? Well, the smallest number is number 2. After that 14, then 26, then 29. Okay? क्योंकि हम सबसे पहले 2 लिखते हैं, 2 की लाइन 10 पे कंप्लीट करने के बाद जब 11 की लाइन चालू होती है 14 आता है, 14 की लाइन कंप्लीट होती है 21 की शुरू होती है, तो 29 से पहले 26 आता है और 29 लास्ट में आता है. So 2, 14, 26, 29. Like this way. Number 6 again you have to write here. Okay, I am writing here another numbers. 10, 23, 7, 4. So here smallest number is number 4, number 7, number 10, number 23. So beta, this is the concept of ascending orders. That means we are going from
फ्रॉम स्मॉल नंबर टू बिग नंबर। ठीक है, हम छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाते हैं, उसे बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, आज मैं आपको एक टास्क दे रही हूँ, जब भी आप स्टेयर्स चढ़ें अपने घर पे, अगर आपके घर में स्टेयर्स हैं, जब भी आप स्टेयर्स चढ़ें तो आप काउंट करके स्टेयर्स चढ़ें, और जब आप ऊपर पहुंच जाएं तब आपको बोलना है आई हैड कंप्लीटेड असेंडिंग ऑर्डर। दैट मीन्स आई स्टेप फ्रॉम स्मॉल नंबर टू बिग नंबर। आप चाहें तो चौक पे उस पे नंबरिंग भी कर सकते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि आप छोटे नंबर से बड़े नंबर की ओर जा रहे हैं, which is called ascending order. So this exercise you had already completed in your notebook, and before that we had completed in our notebook also. In my next lecture I will teach you about descending order. Then we will compare ascending and descending order. Till then, bye.